Hello, my dear kids. This is Chetan sir. So, this is lecture number 9 and chapter 3. So, basically, the heading of this chapter is motion in a straight line, and this physics belongs to the beta series of class 11 NCERT physics. Now, the topic name is types of graphs. So, in the last class, we learned 4 to 5 graphs basically upon position time graph. But in the last class, some students have asked me that, Ki, sir, how you are going to write the velocity with the help of position time graph? Means how you are saying that it is traveling, means it is having a direction. आप direction कैसे बोल रहे हो? Because of यही example है बच्चों. This is the example of position time graph. It is used to find the velocity of the body. जब आप velocity के बारे में बात कर रहे हो बच्चों, that velocity is expressed in terms of magnitude, है ना, as well as direction. दो चीज होते हैं इसके साथ. So magnitude variation का कुछ ज्यादा मैटर नहीं करता है in case of velocity, but over the direction we are going to focus more when we are talking about velocity. तो अगर ये position time graph है, so here distance covering is taking place, but since the distance we are talking about, it means distance is used into the formula of speed, but not in the case of velocity. But if the distance covering is in a particular direction, तो पर्टिकुलर डायरेक्शन कैसे होता है? बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ लीनियर ग्राफ. तो आप ये ग्राफ का जो नेचर है ना, वो देख रहे हो आप, यहां से लेके यहां तक, ओरिजिन से लेके फाइनल पॉइंट तक. ठीक है. सो व्हाट यू आर सीइंग, अ स्ट्रेट लाइन, एंड it is equidistant from the time axis as well as position axis. तो x और y कोऑर्डिनेट से वो equidistant पे है. So basically we can say that the nature of the graph is linear, है ना. चलो. So you are intercepting two position. One is position 1 and position 2 from the curve of the graph. ठीक है. तो with respect to that, again you are intercepting uh, these 2 points. कौन से? ये वाले. Over the x-axis, where on the x-axis we are taking t as a time factor. ठीक है. चलो. तो अगर ये कर रहे हैं हम लोग, I'm going to take a extension of what, my dear kids? Extension of position 1 interception. तो मैंने इसको extension कर लिया. ठीक है. Now you can see here, this point is nothing but A, this point is B, and this point is C, where P2 is nothing but simply you can take this as x2 और इसको x1 करके ले सकते हो, where x2 minus x1, final position minus initial position, is nothing but change in position. Okay, so this is nothing but dx, क्योंकि हम लोग वेलोसिटी के बारे में बात कर रहे हैं. अगर वेलोसिटी है तो उसको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी बोला जा सकता है. ठीक है. नाउ द टाइम फैक्टर, यहां पे क्या रहेगा? टी रहेगा, छोटा वाला टाइम, है ना. तो इसके लिए आप क्या करोगे? सो t1 as well as t2, so you can write this as t2 minus t1, that is equals to delta t. तो आपने अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को डिफाइन करना है तो डेल्टा t टेंड्स टू 0, तो यहां पे क्या आएगा? डेल्टा x डिवाइडेड बाय डेल्टा t, which is equals to dx by dt. तो इसको हम ऐसे लिख रहे हैं, where this factor is a से लेके b तक dx है, फिर dt क्या है? b से लेके c तक. Now slope, whenever you are writing a slope of the curve, slope of the curve क्या है यहाँ पे बताओ? Slope of the curve you should write like this. कैसे? इसको कॉमा डाल के slope करके लिखोगे. This is equals to ab in the numerator, bc in the denominator, where ab is dx, bc is dt. So this is nothing but vi in what? Instantaneous velocity. So instantaneous velocity is nothing but again velocity factor. ठीक है. तो ये तो चीज आपको पता चल गया कि पोजीशन टाइम ग्राफ को कैसे आपने इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी यू आर गोइंग टू राइट. ओके. चलो, दिस इज क्लियर, वेरी मच क्लियर. ठीक है. परिचय. ओके, गुड. सृष्टि नांद्या, वैष्णवी मठ. चलो, अच्छी बात है. वी आर गोना मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट. तो हम लोग अभी हमने क्या देखा? पोजीशन टाइम ग्राफ देखा अभी तक. सो
पोजीशन टाइम ग्राफ से हमने वेलोसिटी को एक्सप्रेस किया। ऐश्वर्या, गुड। नाउ वी आर गोना सी वीटी ग्राफ। पीटी ग्राफ तो हो गया अभी, वी आर गोना सी वीटी ग्राफ। वीटी ग्राफ क्या होता है बेसिकली? सो द हेडिंग वी आर गोइंग टू सी दैट। चलो अच्छी बात है, रक्षिता कांबळे, आफ्टर लॉन्ग टाइम। या वेलोसिटी टाइम ग्राफ कहते हैं। वीटी ग्राफ इज नथिंग माय डियर किड्स, इट इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, चलो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। नाउ लिसन अप माय डियर किड्स। सो ये कैसा वाला ग्राफ है? इट इज द ग्राफ, इट इज द ग्राफ। वीटी ग्राफ क्या है? ये ग्राफ है वेयर यू आर गोइंग टू ऑब्टेन द कर्व। मतलब ग्राफ क्या होता है, कौन से नेचर का होता है? कर्व का होता है, जिसमें आपको नेचर बताना पड़ता है। ठीक है, इट इज द ग्राफ into the bracket curve obtained by plotting instantaneous velocities, instantaneous velocities of a body versus time। ठीक है, चलो नाउ दिस इज फाइन। ये आपको पता चल गया कि क्या है और कैसे है। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट वीटी ग्राफ। नाउ यूजेस ऑफ वीटी ग्राफ। तो डेफिनेशन से हमें क्या पता चला, बताओ? बेसिकली whatever we are drawing a VT graph to the velocity, it is the same for the instantaneous velocities। ठीक है, दोनों सेम है, वन एंड सेम है ना। तो उसी ग्राफ को वीटी ग्राफ कहते हैं। तो वी यूजेस ऑफ वीटी ग्राफ में हम लोग क्या क्या देखते हैं? सो वी आर गोना सी द 5 पॉइंट्स, 5 पॉइंट्स हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलो बच्चों। सो इट इज यूज्ड टू स्टडी, इट इज used to study the nature of motion of the body। ठीक है, now listen up my dear kids। so if you are putting a graph, आप अगर ऐसे ग्राफ पुट कर रहे हो तो आपने कर्व ऐसे बनाया, या कर्व को ऐसे बनाया, या कर्व ऐसे बन रहा है, या कर्व ऐसे बन रहा है, whatever टाइप, ऐसे जो भी है, और else like this। so आपके जो भी नेचर ऑफ ग्राफ्स बन रहे हैं, so basically it is used to study the nature of motion of the body। तो किस तरह का मोशन है, ये हम लोग स्टडी करने के लिए क्या यूज करते हैं? वीटी ग्राफ यूज करते हैं। ठीक है, सो व्हाट टाइप ऑफ, क्या डिस्प्लेसमेंट है या डिस्टेंस है, और एल्स वेलोसिटी है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में अगर नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, सो इट इज आल्सो कॉल्ड एज वेरिएबल वेलोसिटी। तो वेरिएबल वेलोसिटी इंक्रीजिंग ऑर्डर में है तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन, डिक्रीजिंग में है तो negative acceleration, like that। so such type nature we are gonna study that with VT graph। so it is also used to find, it is used to find the velocity of the body at any instant of time। ठीक है, चलो ये तो चीज क्लियरली आपको पता चल गया। ठीक है, means the graph which is you are using to find out the velocity of the body
एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, किसी भी टाइम के इंस्टेंट पे अगर आप वेलोसिटी को फाइंड कर लेते हो, सो दैट विल बी विद द हेल्प ऑफ ग्राफ, यही ग्राफ से, ठीक है। सो इट इज यूज्ड टू फाइंड द एक्सेलरेशन, ठीक है, ऑफ द बॉडी, ठीक है। इज दैट क्लियर माय डियर किड्स? थर्ड पॉइंट आपको क्या बता रहा है? इट इज ऑल टेलिंग अबाउट एक्सेलरेशन, है ना? यस, ठीक है, चलो। सो द फोर्थ पॉइंट विच इज यू आर गोइंग टू मेक, it is used to find the displacement of the body, है ना? मेरी बात समझ में आ रही है आपको? चलो, अच्छी बात है। So the fifth point which you are going to make that, चलो, so it is used to derive the, it is used to derive the equations of motion along a straight line, है ना? Means whatever the body is performing motion along a straight line, you're gonna put those in terms of equation. कुछ equations में आप लोग क्या करोगे, उसको express करोगे, derive करोगे. So what type of equations those are? 3 kinematic equations आपको मिलेंगे, ठीक है। तो पहला वाला काइनेमेटिक इक्वेशन कौन सा है? v is equals to u plus at, where v is the final velocity, u is the initial velocity, a is the acceleration, t is the time. So second one is s is equals to ut plus half at square, है ना? So this is the formula which is used. S is the distance, u is the initial velocity, t is the time, a is the acceleration, whereas t is the time factor, and half is the constant, ठीक है। The third equation, v square is equals to u square plus 2as, ठीक है। ये v square क्या है? Square of the final velocity, square of the initial velocity, 2 is the constant, a is the acceleration, s is the distance, ठीक है। क्या ये बात क्लियरली समझ में आई? Shall we proceed? क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? चलो, अंडरस्टूड, अच्छी बात है। अश्विनी राठौड़, सृष्टि नांदयाल, ऐश्वर्या एंड सौंदर्य, चलो, क्लियर, वेरी थैंक्स इफ दिस इज क्लियर। सो चलिए, वी आर गोना पुट द ग्राफ्स। हम लोग अभी वैरायटीज ऑफ ग्राफ्स देखेंगे, ठीक है। रक्षिता कांबळे, गुड। चलो परिजन, थैंक यू। सो तो अभी हम लोग क्या करेंगे, वी आर गोना सी 5 टाइप्स ऑफ ग्राफ्स, 5 ग्राफ्स देख लेंगे अलग अलग, ठीक है। तो 5 ग्राफ देखने के लिए हमको 5 प्लॉट्स डालने पड़ेंगे। तो अभी ये प्लॉट जो है ना, यानी प्लॉट नहीं है, फिर ये मत बोलना सर हमारे प्लॉट्स के बारे में ही डिस्कस करते रहते हैं, फिजिक्स बोलते ही नहीं है। सो दीज आर द, दीज ग्राफ के जो कोऑर्डिनेट्स है ना, आप जो ऐसे दिखाते हो, so the plane representing with these coordinates are called as, क्या कहते हैं इसको, क्या कहते हैं? these are called as plots, ठीक है। चलो, so 5 plots I am gonna put here. चलो, बना लिया हमने।
Now, what we are going to see. So listen here, Vaishnavi Mat and Priyanka Rathod. तो भाई मैंने ऐसा नेचर ऑफ ग्राफ पुट करा, देन सेकेंड ग्राफ बाय दिस वे ऐसे बना रहा हूं जैसे लीनियर कर्व हो, ठीक है. Another one is the linear curve is there, but it starts with some initial magnitude. चलो ठीक है. So the fourth one is the velocity is getting a decrease, and the fifth one, तो fifth one का जो ऐसे, ठीक है. So this is the final point of the traveling history of the body, ठीक है. So how many graphs we are seeing into the page? We are seeing 5 graphs, ठीक है. चलो ओके, चलो गुड. वैष्णवी मठ, प्रियंका राठौड़, सृष्टि नांदियाल. Listen, now we are putting what versus what. Since I'm saying that this is a VT graph, VT मतलब जो y axis है और जो x axis है, तो along y axis we are writing out the velocity, along x axis we are writing out the time factor, ठीक है. चलो, तो ये चीज सब जगह अप्लाई होगी, वेलोसिटी टाइम फैक्टर, ठीक है. सो वेलोसिटी टाइम फैक्टर, सो वेलोसिटी टाइम फैक्टर, वेलोसिटी टाइम फैक्टर. इज दैट ओके माय डियर किड्स? क्या ये आपको क्लियरली समझ में आया? नाउ लिसन अप. अब क्या करेंगे हम लोग? वी आर गोइंग टू डीकोड ईच एंड एवरी ग्राफ, ठीक है. चलो, परी जैन, अश्विनी राठौड़, सृष्टि नांदियाल, वैष्णवी मत, प्रियंका राठौड़. चलो देखो यहाँ पे how we are going to decode that. So the interception from the curve along the x-axis, not along the x-axis, over the x-axis, ठीक है. तो for the next time interval, again second interception, this is third interception, fourth interception, ठीक है. तो आपको इक्वल टाइम, इक्वल मतलब टाइम मेंटेनेंस के हिसाब से आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है दीज इंटरसेप्शंस, राइट. तो इसको आपने बोला फर्स्ट सेकंड, सेकंड सेकंड, थर्ड सेकंड, फोर्थ सेकंड एंड फिफ्थ सेकंड. फॉर एवरी सेकंड the graph is having the same distance from the x-axis. It means that the y-axis is not varying for every second, ठीक है. तो अभी अगर मैं इसको जीरो, इस डायरेक्शन में 0 मीटर पर सेकेंड ओरिजिन पे ले लूं, तो यहाँ पे इस पॉइंट पे से फॉर एग्जांपल दिस इज 50 मीटर पर सेकेंड, ठीक है. 50 मीटर क्या कर रहा है? डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ठीक है ना. 50 मीटर पर सेकेंड वर्सेस टाइमिंग फॉर एवरी सेकेंड. सो वेलोसिटी इज नॉट चेंजिंग इनटू दिस यूनिफॉर्म कर्व ग्राफ. तो अगर इसमें अगर यूनिफॉर्मिटी मेंटेन्ड है, तो यहाँ पे हम क्या कहते हैं? वी कैन से दैट this is not non-uniform velocity graph, this is uniform velocity graph. तो इसको हम क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म वेलोसिटी ग्राफ. तो इसके लिए हम एक टर्म यूज करेंगे, फॉर द बॉडी मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी. इज दैट क्लियर माय डियर किड्स? क्या हमें ये चीज समझ में आ रही है? ओके, चलो. यस सर, फाइन. गुड. नाउ I'm gonna take the interceptions from where? From the this linear curve graph, ठीक है. तो मैंने आपको मान के चलो for the first, second and for the
second, for the third second, for the fourth second, for the fifth second. I'm going to take interception over the velocities यहां से, ठीक है? तो कितना velocities आएंगे? Number of velocities will be going to get over the y-axis with respect to time variation, है ना? Now listen up, my dear kids. For first second, for second, for third second, for fourth second, and for fifth second. For every change in time interval, we are getting different velocities. यहाँ पे आपको v1 मिला, यहाँ पे v2, यहाँ पे v3, so v4, v5. If the quantity is getting increased for every time interval, इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे क्या हो रहा है? Change in velocity हो रहा है, but in increasing order. कैसे हो रहा है? In increasing order. तो इसके लिए आप इसको कैसे लोगे? You will take it as a positive acceleration. परिजन, you are right. ठीक है? तो अभी इसके लिए एक टर्म यूज करते हैं. For a body moving with uniform acceleration, can we say like that? Since we don't know that कि velocity कितने order से increase कर रहा है, can we say like that? Uniform acceleration with initial velocity is 0, है ना? मतलब इनिशियली इसका वैल्यू कुछ भी है नहीं वैसे. ओके, सो दैट इज 0. चलो, फाइन. सो विद इन 10 minutes दिस लिंक विल बी गोइंग टू गेट कट. ठीक है? वैष्णवी मठ, परी जैन एंड रक्षिता कांबले. ओके, फाइन, थैंक यू. सो दिस इज योर ओरिजिन. तो ओरिजिन से इसने अपनी जर्नी स्टार्ट की जहां पे वेलोसिटी 0 थी. बट हियर इफ यू सी द ओरिजिन and if you see the value of the velocity is somewhat, कुछ तो है. ठीक है? इनिशियल वेलोसिटी कुछ तो है. तो यहाँ पे मैं इसको क्या बोलूंगा? इट विल बी somewhat v करके बोल लूंगा इनिशियल वेलोसिटी. सो अगेन फॉर दिस टाइप ऑफ ग्राफ्स, इस तरह के ग्राफ्स को क्या बोलेंगे हम लोग? वी कैन से कि यार दिस इज ऑल्सो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. क्योंकि आप देखो, if you see this for every second, so the velocity interception over the y-axis, it is increasing. देखो आप, है ना? Are you getting my point, my dear kids? यहाँ पे देखो, if you see the interception of time factor along the, not along, over the x-axis, so you'll get consecutive velocity interception over the y-axis. ठीक है? ये y-axis, ये x-axis. तो आप देख सकते हो, this is 1 second and this is second. So again here velocity variation is taking place, but in the increasing order. ठीक है? चलो. So for this, how you are going to write the condition for the third graph? ठीक है? तो कैसे लिख सकते हो आप लोग? For a body moving with uniform acceleration with initial velocity or with some initial velocity. ठीक है? कुछ इनिशियल वेलोसिटी के साथ ही क्या हो रहा है? ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो रहा है. यू कैन राइट प्रॉपरली विथ सम इनिशियल वेलोसिटी. इज दैट क्लियर, माय डियर किड्स? समझ में आया थर्ड ग्राफ? ओके. नाउ वी केम थ्रू 3 graphs where we are seeing the types of VT graphs, है ना?
चलो अच्छी बात है। ओके, परिजैन, रक्षिता कांबळे, सृष्टि नांदयाल, प्रियंका राठौड़, फाइन। चलो listen up. So here steep dive we are seeing from the maximum value of velocity. अगर कोई velocity v है, समझो कि ये जो velocity v है कितनी वैल्यू है इसकी, 60 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 60 मीटर पर सेकेंड फॉर एवरी point which you are simply intercepting over the time factor. From the first second में इतना velocity गिरा, for the second again it is dropping its velocity magnitude value, for the third second again it is dropping its value, for the fourth, for the fifth and for the sixth, ठीक है। चलो, so what these things are depicting, यहाँ पे देखो, same thing you can see here, there is a sudden drop of velocity here at the last point of time. You are able to see that there will be no velocity, कहाँ पे, यहाँ पे। तो first second, second second, third second, fourth second, fifth second, sixth second, at the sixth second the velocity, final velocity is equals to 0. So what we are observing here कि हम लोग ये चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं कि वेलोसिटी का कर्व नीचे है, मतलब वेलोसिटी इज गेटिंग ड्रॉप्ड। तो इसके लिए आप क्या लिखोगे कंडीशन, तो इसके लिए आप कंडीशन लिखोगे फॉर ए बॉडी मूविंग विथ यूनिफॉर्म डिसेलरेशन, और यूनिफॉर्म रिटार्डेशन कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं वैसे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? विथ इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, ये सारे कंडीशन आप लिख रहे हो। चलो, so the last point which we are lost graph of this page we are going to make, कौन सा वाला करेंगे हम लोग, ये जो कर्व है ना, दिख रहा है ना आपको, जिसमें आपको लग रहा है कि यार ये बढ़ रहा है फिर घट रहा है, फिर बढ़ रहा है फिर घट रहा है, फिर बढ़ रहा है घट रहा है, बढ़ रहा है घट रहा है, फिर घट गया, ठीक है। सो मैं यहाँ पे सिर्फ 2 पॉइंट को मार्क करूंगा, आई एम गोइंग टू मार्क 2 पॉइंट्स। लिसन अप माय डियर किड्स, व्हेन यू आर इंटरसेप्टिंग अबव y axis, और एक the same, the next point, the highest point and the lowest point, lowest point नहीं तो भी nearest to the lowest point लिया मैंने। So I have taken 2 interception where above the or over the y axis, ठीक है। तो देखो आप, you can observe here over the y axis, ठीक। Now this interception with respect to the highest and another point we are getting at the time factor t, ठीक है। इसमें हमको क्या चीज पता चल रही है बताओ फट से, what we are observing here, so this is the highest velocity, right, where this point is showing the value of velocity is maximum, ठीक है, but the time factor, time factor is somewhere at the middle portion, ये tm है समझ लो। तो यहां से अगर t is equals to 0 और यहां से t1 is equals to somewhat and t2 is equals to somewhat, तो ये somewhere in the middle tm, ठीक है, and this is the last point of time, that is tn, okay। So for tn we are having the velocity which is less, that is called as vn. For tm it is having the velocity vm मान के चलो। So what we are seeing through the graph, हमको ग्राफ से क्या पता चल रहा है पता है, simply the value of velocity, the value of velocity is varying, क्या हो रहा है, ये वेरी कर रहा है, क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? सो इट इज गेटिंग वेरी, है ना। तो अभी क्या करना है इसको, व्हाट वी आर गोइंग टू सी,
वी आर गोइंग टू सी दैट इसका एक कंडीशन बनाएंगे फॉर ए बॉडी, फॉर ए बॉडी मूविंग विथ वेरिएबल वेट, मूविंग विथ वेरिएबल वेलोसिटी, ठीक है ना। सो दिस इज योर व्हाट, दिस इज योर द फिफ्थ कंडीशन फॉर द ग्राफ, है ना। तो ये कंडीशन आपका फिफ्थ कंडीशन को दर्शाता है। व्हाट इट इज रिप्रेजेंटिंग, इट इज रिप्रेजेंटिंग द नॉन यूनिफॉर्म वाला वेलोसिटी, जहां पे वैल्यू बढ़ भी रहा है और घट भी रहा है, ठीक है। सो दिस इज नथिंग बट नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। सो टिल हियर इज दैट क्लियर माय डियर किड्स? सो अगर ये क्लियर है हम लोग आगे निकल जाएंगे, ठीक है। So the next point I'm going to make is the equation of motion. Derive kinematic second equation. X is equals to ut plus half at square by graphical method. ठीक है. This link will be going to get cut within a minute. अभी कट हो जाएगा वैसे, ठीक है. तो आपको सेम लिंक यूज करना है टू rejoin this class. ठीक है. Okay, my dear kids. चलो. So I think till here everyone is clear with the concepts. अच्छी बात है. वैष्णवी मठ, रक्षिता कांबळे, परिजैन, अश्विनी राठौड़. Okay, Shrishti Nandya. Fine, thank you. So, my dear kids, so this is the question where we are going to solve the kinematic second equation. Fine. So, the easiest possible way I'm going to use to solve the derivation. ठीक है. तो पहले तो हम लोग क्या करते हैं बच्चों, वी आर गोइंग टू पुट द प्लॉट, प्लॉट ऑफ द ग्राफ, है ना, जहां पे दो कोऑर्डिनेट्स हम लोग डालेंगे, ठीक है। चलो, तो फिर उसके बाद उसमें कर्व को हमको पुट अप करना है, ठीक है। तो अभी हमने क्या करा, वी यूज टू पुट द प्लॉट, ओके। नाउ फ्रॉम हियर, सो दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इनटू द ग्राफ। तो ग्राफ में हमने क्या करा, हमने करा वी ड्रॉन अ डिस्प्लेसमेंट, फाइन। सो दिस इज योर ग्राफ। तो इसमें ग्राफ कौन सा है सर, कर्व कौन सा है इसमें बच्चों? कर्व इज दिस वन, कौन सा, ये वाला, यहां से लेके यहां तक, मतलब ये जो रेड ब्लैक दिख रहा है ना, the purposely I have did the red black because this is the main thing what we are doing here. तो ये आपका इनिशियल पॉइंट है। सो दिस इज योर इनिशियल पॉइंट एंड दिस इज योर फाइनल पॉइंट, ठीक है, दो पॉइंट्स हैं यहाँ पे। बट हियर इज द ओरिजिन एंड दिस पॉइंट इज टेकन एज ए, ठीक है। दिस पॉइंट इज टेकन एज बी, दिस वन एज सी एंड हियर इट एज डी, ठीक है। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है बच्चों? ओके, नाउ वी आर गोना simply write the time factor over the x-axis, whereas along the y-axis as velocity, ठीक है। ये तो चीज हमको पता चल गई। From O to D, what we are observing here is time t। तो ये दोनों के बीच में क्या है, टाइम t है। तो सर फिर O से लेके A तक ये क्या है? This is nothing but my dear kids, it is initial velocity u, ठीक है। चलो, तो अगर ये बात है तो एक काम करते हैं, व्हाट इज दिस, ये क्या है आपका, एट पॉइंट बी, एट पॉइंट बी वी आर हैविंग v, फाइनल वेलोसिटी, है ना। तो अगर ये फाइनल वेलोसिटी है और ये इनिशियल वेलोसिटी है, तो मैं क्या करूंगा, bc is nothing but v minus u, so this distance is nothing but v minus u,
क्या मेरी बात आपको क्लियरली समझ में आ रही है? टिल हियर इज इट ओके? रक्षिता, वैष्णवी, परिजैन, ओके चलो, सृष्टि नांदियाल, फाइन। सो लिसन अप डियर किड्स, देखो बच्चों, अभी आगे क्या करना है सर, आगे क्या करना है, बिकॉज यू आर टॉकिंग अबाउट अ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी with the help of what? Very good, Aishwarya. So with the help of what? With the help of VT ग्राफ, ठीक है ना? VT ग्राफ के हिसाब से आप डिस्प्लेसमेंट को दिखाने वाले हो। Means a body is covering its distance in a straight line. So the body is moving along a straight line, तो आप उसको VT ग्राफ में दिखा रहे हो। तो उसके हेल्प से आप क्या कर रहे हो? यू आर फाइंडिंग आउट द काइनेमेटिक सेकंड इक्वेशन। ओके, सो you can write v is equals to x by t. Fine. V is equals to x by t. चलो, now you can write x is equals to v t, v into t. What is vt? So you can write like this, where x is represented as displacement. x क्या है आपका? डिस्प्लेसमेंट है। सो एरिया अंडर वीटी ग्राफ, एरिया अंडर वीटी ग्राफ क्या है? ठीक है, तो मतलब ये वाला वीटी, ठीक है। सो दिस इज वी इंटू टी है। आप क्या करोगे? डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ वीटी, ठीक है ना? तो इसको आप कैसे लिखोगे? x इज इक्वल्स टू, अभी एरिया का शेप आपने देखा है कैसे है, बताओ, फट से बताओ। सो वन रेक्टेंगल, अनदर ट्रायंगल। क्या मेरी आपको बात समझ में आ रही है बच्चों? सो द होल इज नथिंग बट ट्रापेजियम। क्या है ये? व्हाट इज दिस? इज दैट ट्रापेजियम? चलो अच्छी बात है, गुड। नाउ ट्रापेजियम इज इक्वल्स टू, एरिया ऑफ ट्रापेजियम इज इक्वल्स टू, क्या लिखोगे आप बताओ? एरिया ऑफ ट्रापेजियम, ठीक है, इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, है ना, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्या मेरी बात आपको क्लियरली समझ में आई? तो ट्रायंगल क्या है? एरिया ऑफ ट्रायंगल इज नथिंग माय डियर किड्स, फिर से एरिया ऑफ रेक्टेंगल, है ना, प्लस हाफ ऑफ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। इज दैट करेक्ट? क्या ट्रायंगल, क्या ट्रायंगल हाफ ऑफ द एरिया है ट्रायंगल का, मींस ओनली वी आर हैविंग दिस मच। तो जो हाफ पोर्शन है वो क्या है? वो कुछ भी नहीं है ना? यस, परी जैन, सृष्टि नांदियाल, अश्विनी राठौड़, ठीक है, ये चीज पता चल गया? यू गॉट दिस? ओके, रक्षिता, गुड, वैष्णवी। सो अभी इसको थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करते हैं। फाइन, चलो देखो यहाँ पे क्या करते हैं इसको। सो आई हैव रिटन इन टर्म्स, यहाँ पे मैंने टर्म्स में लिखा था, अभी यहाँ पे टर्म्स में नहीं लिखूंगा, तो मैं डायरेक्टली लिखूंगा। क्या लिखूंगा? एरिया ऑफ वीटी इज नथिंग बट एरिया ऑफ ट्रापेजियम। तो एरिया ऑफ ट्रापेजियम इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है ना, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, जो कि ट्रायंगल क्या है? हाफ ऑफ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल है। तो अभी एरिया ऑफ रेक्टेंगल फिर से लिख देंगे, देन अगेन हाफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल लिखेंगे। फाइन, चलो, एरिया मींस एल इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो यहाँ पे देखो, अगर इफ यू आर टॉकिंग अबाउट ओ ए सी डी, आइदर यू टेक ओडी और एसी, दोनों एक ही चीज है। तो मैं क्या करूंगा? आई विल टेक दिस ओडी, ओडी फंडा, ठीक है, फिर बाद में सी डी, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ठीक है। तो अभी ओडी इंटू
DC प्लस हाफ एरिया ऑफ क्या, रेक्टेंगल। यहाँ पे हाफ एरिया क्या है, AC इंटू BC। ठीक है, चलो तो अभी क्या करना है, OD कितना है, T, DC how much, DC is nothing, that is U factor, U है ना, प्लस हाफ, AC कितना है, AC is T, इज दैट ओके। BC कितना है, V माइनस U है, सर ये तो V माइनस U है। If we write this one properly sir, UT half plus half T V माइनस U। सर अभी यहाँ पे तो हाफ 80 स्क्वायर है सर, तो आपने टी वी माइनस यू लिखा है, उसको कैसे 80 स्क्वायर बनाते हैं। लिसन अप माय डियर किड्स, वी ऑल नो दैट v is equals to u plus 80 as per kinematic फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन अगर u को आप इस तरफ शिफ्ट कर दो, v माइनस यू इज इक्वल्स टू क्या आएगा, 80 आएगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं बच्चों, यहाँ पे देखो, यहीं पे बाइफरगेट कर लेता हूँ, इतना सा प्लेस थोड़ा सा प्लेस, तो इसी में लिखूंगा फाइन। सो x कीप एज इट इज x, तो ut का ut एज इट इज हाफ, t का t एज इट इज v माइनस u की जगह 80। ठीक है, so this can be written as x is equals to ut plus half 80 square. So is that clear my dear kids? मैंने जो आपको बोलने की कोशिश की, have you got that? Yes sir, understood, fine, easy था। वैष्णवी मठ, रक्षिता कांबळे, परी जैन, ऐश्वर्या एंड सौंदर्या, was that easy? चलो अच्छी बात है यार। अश्विनी राठौड़, गुड, यस सर इट इज इजी, फाइन। चलो नाउ लिसन अप डियर किड्स, वैभवी पवार, लिसन अप। सो x इज द डिस्प्लेसमेंट, मतलब डिस्टेंस अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। कुछ लोग x को डिस्टेंस बोलते हैं। You should know that motion is taking place along a straight line, मतलब distance covering straight line में हो रहा है। Where u is initial velocity, u क्या है, initial velocity, t is the time taken, a is the acceleration। ठीक है, तो acceleration अगर होगा भी when the body is moving along a straight line, ठीक है, तो किस तरह का acceleration होगा, that will be your homework। तो यहाँ पे जो acceleration हो रहा है, acceleration of a body is taking place, so what type of acceleration, क्या ये यूनिफॉर्म होगा acceleration और नॉन यूनिफॉर्म है। सो दिस इज योर होमवर्क। ठीक है, मैंने तो आपको क्या दिखा दिया, आई टॉट यू अ डेरिवेशन। तो अभी क्या आपको करना है, यू पीपल्स नीड टू डू द होमवर्क, तो आपको ये होमवर्क करना पड़ेगा। इज दैट ओके? सो दिस इज योर होमवर्क। चलो, थैंक्स माय डियर किड्स फॉर लिसनिंग एवरीथिंग पेशेंसली। शांत तरीके से बैठ के सुनने के लिए थैंक यू वेरी मच। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा? इफ इट इज गुड, तो आगे का आपको काम पता है क्या करना है। ठीक है, सो ट्राई टू विजिट माय फिजिक्स चैनल, दैट इज फिजिक्स इंडियन प्रोफेसर एट यूट्यूब। ठीक है, बिकॉज इन द टाइम ऑफ एग्जाम्स यू विल बी नॉट गेट द सफिशिएंट टाइम, आपके पास सफिशिएंट टाइम नहीं रहेगा। तो उस वक्त में आप एक एक घंटे के वीडियो सभी चैप्टर्स के देखना चाहोगे तो यू विल बी हैविंग डिफिकल्टी। सो अगर कोई दिमाग में आपके
confusion का कीड़ा या difficulty or else any doubts, you can go and visit to my physics Indian professor channel. ठीक है? Yeah. Okay. No issues, Priyanka Rathod. So, are you getting my point, my dear kids? क्या आपको पता चल रहा है मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? So, अगर कोई आपको कोई डिफिकल्टी है, so you can go and visit my YouTube channel. So, you peoples जिनको कमेंट समझो कि अगर नहीं करना है तो वो सिंपली लाइक कर सकते हो. ओके, एंड सी फुल लेंथ वीडियोस. जरूरी नहीं है कि कमेंट ही करना है, ऐसा कुछ नहीं. इफ यू डोंट वांट टू कमेंट देयर, इफ यू वांट टू कीप योर प्राइवेसी, इट इज लेफ्ट टू यू. बट यू कैन सिंपली लाइक करने से किसी का नाम नहीं पता चलता है. ठीक है? एंड यू शुड सी द फुल लेंथ वीडियोस. कुछ लोग होते हैं कि थोड़ा सा मतलब उनके घर में कंजर्व रहता है सोसाइटी, सो दे डोंट वांट टू डिस्प्ले देयर नेम ऑन यूट्यूब. तो उनके भाई लोग स्ट्रिक्ट होते हैं. सो दैट इज नॉट अ बैड थिंग. इट इज द मैटर ऑफ सिक्योरिटी, प्राइवेसी. ठीक है? तो आई डोंट माइंड, मैं ऐसा बुरा नहीं मानता हूँ उन चीजों को. ठीक है? सो वैष्णव, यू टेक द अटेंडेंस. फाइन. एनी हाउ, थैंक्स. जय हिंद.